guys, let us solve some example which is based on a cell EMF and resistance. Okay, now example number 3.1 from the textbook. The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. So EMF is equal to what? 12 volt. If the internal resistance is 0.4 ohm, so R is equal to 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? So we have to finding out the maximum current which is drawn from a battery. So if you just draw the figure of battery in a car, then the situation is like this. See, this is the battery. What is this? Battery. EMF is equal to epsilon and internal resistance R. So when this type of situation is given to you and you consider some current I flow through the circuit, okay, and that is external resistance R. This is what? External resistance. So in this situation, what is the current? If you just write the equation of current, then what is the current in this situation? So as we write, I is equal to EMF upon total resistance R plus R. This is the equation of current, okay, as we derived in a theory session. Now you want a maximum current. If you want a maximum current, then you just consider, see, EMF is EMF, it does not change. You just take this R plus R is minimum. So internal resistance of battery is fixed. Internal resistance of the battery is fixed. So when this denominator is minimum, I becomes maximum. So minimum denominator means what? In this circuit you take R is equal to 0. When you take this R is equal to 0, then you I becomes I मैक्सिमम. मतलब आप यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की जगह पे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी जगह पे आप कंडक्टिंग वायर को ऐसे ज्वाइन कर दो, मतलब you just take R is equal to 0, then this current become maximum. So when R is equal to 0, I becomes I maximum. So what is your final answer? I maximum is equal to EMF upon R. You must be noting. Okay, both this value are given to you. You just put this value here and calculate answer, and their answer is in ampere. Okay, not this example. Let's see example number 3.2 from the textbook exercise. A battery of EMF 10 volt. So given data, EMF is equal to 10 volt. Internal resistance 3 ohm. R is equal to 3 ohm. Connected to the resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, means current flow through the circuit is 0.5 ampere. What is the resistance of this one? So what is the R is equal to what? This type of situation is given to us, and we have to find the terminal voltage of a battery. So V is equal to what? So we get all this answer in this one. So let's draw the first this figure. So if you connected a battery like this, so what is this? Battery EMF internal resistance R connect to the external resistance R. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इस डेटा के according to this one, what is this current flow through it? I. Okay, how much current? I is equal to 0.5 ampere flow through the circuit, and here you consider this 2 point A and B. So terminal voltage means potential difference between A B, it's a terminal voltage. ओके, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? V, टर्मिनल वोल्टेज. सो वी हैव टू फाइंड दिस टू डेटा, एंड वी नो दिस इक्वेशंस आर रेडी मेड एज वी डिराइव्ड इन द थ्योरी सेशन. सो व्हाट इज दिस करंट? सो करंट I is equal to EMF upon R plus R. I given, epsilon given, R given, R no miss. You have to find the R from this one. Okay, so find the R and your answer in terms of 4. So calculation is in homework. Now the second one, terminal voltage. Terminal voltage. Then use this one. V is equal to epsilon minus IR. Okay, right now discharging case. So in case of discharging, V is equal to epsilon minus I. In case of charging, V is equal to epsilon plus I. So right now V is equal to epsilon minus I. So V find करना है, epsilon and I and R, all those things are given here. So calculate your
potential difference between this AB, that's called a terminal voltage, and you get this answer in terms of volt. Okay, so calculation is in ohm bar. Not this example. Okay, let's come to the next example. Example number 3.18. Total 4 questions are there. Out of this, A and B we already solved in the previous one. In today's session, we discuss the C and D. Okay, so what is the C? A low voltage supply from which one needs the high current must have low internal resistance. Why? मतलब कि हाई करंट के लिए आपको लो इंटरनल रेजिस्टेंस रखना है. आप कोई भी बैटरी कनेक्ट करते हो तो उसमें करंट की इक्वेशन क्या होती है? आई इज इक्वल एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर. इफ आई है तो यहाँ पे आर रखना है, अदरवाइज स्मॉल आर ओनली. ठीक है, तो इस तरह से आपका आई का इक्वेशन है करंट का. सो इफ यू कंसिडर दिस इक्वेशन, देन if you want a high current, then you just minimize this one. Okay, अगर आपका R fix है in this equation, you consider your R is what? Fixed. मतलब लोड रेजिस्टेंस फिक्स है, तो फिर हाई करंट के लिए आपको क्या डिक्रीज करना होगा? स्मॉल आर. सो आर को अगर आप लिस्ट रखते हो तो आपको करंट कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा फ्रॉम दिस रिलेशन. Okay, so that is the reason if you want a high current, then you must be consider the internal resistance is smaller one. Okay, now what is this next problem? D. A high tension supply like a 6 kV must have a large internal resistance. Why? Means in this type of case of high tension, we require a large internal resistance. What is the reason? So if you consider this type of high tension line, so in high tension line, if you consider short circuit, sometime maybe it is possible a short circuit. अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चला जाएगा. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चला गया तो फिर मैक्सिमम करंट पास होगा. शॉर्ट सर्किट का केस कैसे होता है? देखो यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं. यहाँ पे ऐसे हाई टेंशन की लाइन है, ये हाई टेंशन है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. दैट्स सिंपल कंडीशन. नाउ इफ शॉर्ट सर्किट इज अकर्स, मतलब कि ये जो आर है वो शॉर्ट हो गया, ऐसा आप मान के चलो, तो फिर ये सर्किट कैसी हो जाए? देखो ये आपकी हाई टेंशन इंटर रेजिस्टेंस ऐसे हो गया. तो फिर शॉर्ट सर्किट के केस में यहां पे जो आपका शॉर्ट सर्किट हुआ, okay, that's a short circuit. So in this case, suppose I current will be flow. So in the second case, in case of short circuit, so whatever the current is passed through the circuit, it is maximum. That is what? Maximum. तो इसको अगर एक एक्सिट लिमिट से ज्यादा नहीं करना है तो फिर आर को आपको हाई रखना होगा. आर को कैसा रखना होगा? देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन है. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? यू मस्ट बी हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा रखना होगा? हाई रखना होगा. तो फिर यहाँ पे ये जो करंट है उसकी सेफ्टी लिमिट को क्रॉस ना करे, इसलिए आपको आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हाई रखना होगा. अदरवाइज दिस एवरीथिंग विल बी फ्यूज. सो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, आंसर कैसा रहेगा? इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, in case of short circuit, current does not exceeds its सेफ्टी लिमिट. ठीक है, उसकी सेफ्टी लिमिट को क्रॉस ना करे, इसलिए आपको हाई टेंशन की लाइन में इंटरनल रेजिस्टेंस हाई रखना है. ठीक है, अगर आर प्रेजेंस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. But sometime may be possible in a high tension line, there is a sometime may be possible short circuit is occurs. So at that time, otherwise everything will be diffused. Okay, so to save this everything, we just consider internal resistance is what? Very high. So that is the reason. Okay, not this. Okay guys, let's come to the next example. Example number 3.3, combination of resistor. Okay, what is the problem statement? The three resistors 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are connected in series like this. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm connected in a series. So what is the total resistance of a combination? So we apply the rule of a combination of resistance in series. So equivalence resistance are series. In case of series resistance, we just consider the summation. So R1
plus R2 plus R3 sum 1 plus 2 plus 3, so 1 plus 2 3, 3 plus 3 6 ohm. So this answer is what? Equivalence resistance in series what? 6 ohm. मतलब इसका आंसर हुआ 6 ohm. Now the second problem, if the combination is connected to the 12 volt battery, 12 volt battery and negligible internal resistance, मतलब internal resistance consider 0. So this whole circuit is connected to the one battery with internal resistance 0 of 12 volt. Okay, ऐसा question है. So what we have to find? Obtain the potential drop across each resistor. So we have to finding out the potential drop across the first resistor V1. Okay, across the second consider it is a V2, and across the third consider it is a V3. Means we have to finding out potential drop across V1, R1, R2 and R3. Consider V1, V2 and V3. So how much current will flow through the circuit? Consider suppose I. If the I current is passing through the circuit, then how you get this answer? So let's see, find this current first. So current I is equal to total potential अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस तो आर एस ही है, तो मतलब इसकी सर्किट में आप ऐसा रख सकते हैं. तो आंसर क्या हुआ? 12/6. मतलब I इज इक्वल टू 2 एम्पियर. So potential drop is always given as IR. V is equal to IR. Okay. So potential drop across R1, across R1 अगर फाइंड करना है तो V1 is equal to IR1. How much current pass through this each resistance I, and potential V1 है तो फिर R1 को मल्टीप्लाई करो. Similarly potential drop across R2, V2 is equal to IR2. From the R2 same current will be flow, as we discussed in a theory session. If any kind of resistance is given to you, if any resistance is given to in series, then current is same. So current is same, only you change the resistance. Similarly for R3, V3 is equal to IR3. I known है, resistance भी known है. ठीक है, तो आप सब count कर लेना. This everything is in homework. After calculating this, you just find the summation of this all potential drop. Then your answer is 12 volt. अब इसका सबका सम करोगे तो आंसर कितना होना चाहिए? 12 volt. ठीक है, तो नोट कर लो एग्जाम्पल को. Okay guys, next example number 3.4 from the textbook exercise. 3 resistors 2, 4 and 5 ohm are combined in parallel like this. 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in a parallel. So what is the total resistance of this combination? So equivalence resistance in parallel, how we get this answer? So equivalence resistance in parallel. ओके, सो आर पी अगर आपको फाइंड करना है तो इक्वेशन कैसा रखना होगा? फॉर आर पी, सो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. पुट दिस ऑल दिस वैल्यू यू गेटिंग दिस आंसर. सो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/2 plus 1/4 plus 1/5. So you just simplify this relation. So 2, 4 and 5, 5 4 are 20. So you just take everywhere in denominator 20. So what do you get here? See, 1/RP, यहाँ पे 20 लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करो. So 10/20. If you want 20 here, then you multiply by 5. So 5 into 4, 20. If you want 20 here, then multiply by 4. So 4/20. Denominator same, summation of numerator. ओके, सो आंसर आपका हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19. So 19/20. Then finally you take a reciprocal. So RP is equal to 20/19 ohm. This is the equivalence resistance of this combination. Okay, now the second question is what? If the combination is connected to the battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance, then determine the current through each resistance and total current through the battery. तो आपको दो केस फाइंड करना है. कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया आपने? Here we connect the battery of 20 volt. So you are connect this battery
20 वोल्ट, बट इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो रखा ही नहीं ऐसे 0. सो हाउ मच करंट फ्लो थ्रू द सर्किट? सपोज I. So this I is divided in the 3 branches. Consider it through R1, this is I1, R2, this is I2, and R3, this is what? I3. Like this. So see, in case of parallel connection, always potential is same. So here R1, R2, R3 all having the same potential, 20 volt. So current is equal to potential upon resistance from the Ohm's law. So current through R1, current थ्रू, अगर R1 फाइंड करना है तो फिर I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा. पोटेंशियल तो सभी केस में सेम होगा, पैरेलल है तो कितना होगा? 20. कितना होगा? 20. सो यहाँ पे वैल्यू रखो 20 अपॉन 2, सो दैट इज 10 एम्पियर. ओके. सेकेंड केस, करंट थ्रू R2, वो कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, तो V 20 है, R2 कितना है? 4. यू जस्ट पुट हियर, सो दैट इज 5 एम्पियर. एंड R3, देन I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, V 20, R3 is 5, so this one is 5, so 20 upon 5, 4 ampere. So this is the current through each resistance. Okay, now what is total current? So sum of this all, total current I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3, सम कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं. नोट डाउन दिस एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 3.20. okay, there is a 3 problem, we solve one by one. What is the first problem? Given n resistors, each of r resistors. Okay, you have n resistance and it's n resistors having a resistance is equal to what? R. Now how you combine to get maximum? So if you want a maximum resistance by any resistance combination, then you must be connected in series. And if you want a minimum resistance, then you must be connected in a parallel, as we discussed in theory session. Okay, now if n resistance are connected in series, then equivalence resistance given by nr, as we know. And if you connect this one in parallel, then what is equivalent resistance? R upon n, as we know. Okay, so that is the first answer. The series resistance is maximum. This is what first answer, maximum resistance. And that is our second answer, minimum resistance. ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए सीरीज में कनेक्ट करना है, मिनिमम के लिए पैरेलल में कनेक्ट करना है. नाउ दिस नेक्स्ट वन इज what is the ratio of the maximum to minimum resistance? Maximum to minimum resistance. So you have to finding out the ratio R max upon R min. So what is R max? R series. And what is R min? R parallel. So it is equal to R series is what? NR. R parallel is equal to what? R upon N. R cancel, denominator of the denominator comes to numerator is become N square. That is our answer. Okay, not this example, then after we solve second one. Okay, next problem 3.20, second one. Given resistance 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. So R1 consider 1, 2 and 3 ohm. Okay, like this. Now how you will combine that to get the equivalent? मतलब आप इस रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है और इस तरह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. मतलब 11/3 फाइंड आना चाहिए, 11/5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6/11 होना चाहिए. तो फिर आप उसको कैसे कंबाइन करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही लेना पड़ेगा. हियर वी गेट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑल दिस रेजिस्टेंस. ओके, सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन में पहले सीरीज और पैरेलल को काउंट कर लेना है. तो उसमें से कोई आंसर है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में नेक्स्ट देखना है. ठीक है, चलो तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेते हैं सीरीज का. ऐसे तो सीरीज का काउंट करो तो R1, R2, R3. इसका R इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का? सो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सो R1 1 + 2 + 3. सो 1 + 2 3, 3 + 6, तो ए हो गया 6 ओम. देख लो आंसर में 6 ओम चाहिए आपको. Then yes, you want 6 ohm. So A हुआ 3 का आंसर, है ना. मतलब 6 ohm चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट करना है. सेकेंड पे चलते हैं, पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसका इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा?
सो 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. So put this whole value. So it is equal to 1/1 plus 1/2 plus 1/3. तो इसका कॉमन निकालो तो 3 इंटू 2 6, मतलब 6 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलो तो कॉमन निकालो तो 1/R इक्विवेलेंस, यहाँ पे 6 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 में 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ये 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, सो 11/6। इसका रेसिप्रोकल निकालो, सो R इज इक्वल, सो 6/11 हो जाएगा, 6/11 ओहम। सीधा आंसर 6/11 है, यस दिस वन। सो दिस कॉम्बिनेशन इज फॉर अ फोर्थ वन। नाउ सीरीज और पैरेलल तो आ गए, अभी चाहिए ये दोनों, तो इसमें कैसे काउंट करना है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे 11/3 है और यहाँ पे 11/5 है, तो अगर आप पैरेलल सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हो, डिनोमिनेटर में समेशन ही आता है, ऐसे डिनोमिनेटर में समेशन ही आएगा बाद में, है ना। इसको आप अपोजिट करोगे ऐसे तो समेशन आना चाहिए, तो आप इसको इस तरह से कुछ काउंट करो कि डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 5 आना चाहिए। अगर 3 डिनोमिनेटर में चाहिए तो इसमें सम किसका 3 आता है, आप जितने भी रेजिस्टेंस है उसमें सम किसका 3 आता है, देखो 1 + 2 करोगे 3 आएगा, मतलब इसको आप पैरेलल में रखो, इसके साथ इसको आप सीरीज में रखो। आपको डिनोमिनेटर में 3 चाहिए तो आप इसका सम करो, तो कौन सा रेजिस्टेंस का सम 3 आता है, सो 1 और 2 का 3 आता है, तो उसको इन दोनों को पैरेलल में रखो, इसके साथ इसको सीरीज में रखो, तो मतलब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाओ, तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन। काफ़ी सारे बन सकते हैं, आपको ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड से चलना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, 1 और 2 को पैरेलल में रखो, 3 के साथ सीरीज में, तो मतलब इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। चलो तो यहाँ पे हो गया R3, यहाँ पे हो गया R1 एंड R2, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि इसका सम कितना आता है 3, तो 3 से ऐसे काउंट करो, कोई एक आंसर होना चाहिए। तो इस मतलब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो मैंने आपको सिखाया कैसे करना है। तो इन दोनों का सिर्फ काउंट करो, सिर्फ इतना ही अगर आप काउंट करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। 2 रेजिस्टेंस के पैरेलल का इक्वेशन मैंने आप सबको दिया हुआ था, तो उससे आप इक्वेशन सॉल्व करो। चलो तो R1 कितना लेना है 1 इंटू R2 कितना लेना है 2 अपॉन R1 प्लस R2 3, तो इसका आंसर कितना आया 2/3 इतने का। हाँ, तो मतलब ए सर्किट अभी कैसी बनी है, देखो द सेम सर्किट इज जस्ट given by this one, okay, फर्स्ट रेजिस्टेंस R3 और इतनी सर्किट का रेजिस्टेंस आप रख दो 2/3 ओम। सेम है, इस यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, तो ए हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। R3 कितना लेना है 3 ओम, तो 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उस फाइनल ए बी कितना आता है, इसमें अभी इक्विवेलेंस क्या आएगा देखो, सो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R3 + 2/3, सो 3 + 2/3 इंटू 3 9, 9 + 2 11, सो इसका आंसर हो गया R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 11/3 ओम। देखो यहाँ पे 11/3 है, तो यही है 11/3, तो मतलब ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो किसके लिए है, फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट, मतलब उसके लिए। जैसे यहाँ पे ये 3 के लिए ऐसा है, 4 के लिए होना चाहिए, फर्स्ट के लिए होना चाहिए। फोर्थ कॉम्बिनेशन देखते हैं कोई दूसरा, इसमें आपको डिनोमिनेटर में कितने चाहिए 5 चाहिए, तो आप जितने भी रेजिस्टेंस है उसमें सम करो, उसमें 5 आना चाहिए, तो 5 इसके सम कर 2 और 3 + 5 हो गया ना। मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में रखो, इसके साथ इसको सीरीज में रखो। ओके, चलो ऐसा कॉम्बिनेशन सोचते हैं, 1 के साथ 2 और 3 पैरेलल में होना चाहिए, ठीक है। तो ए हुआ R1 और 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे हो गया, तो R2 एंड R3, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। आपको R और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो 2 रेजिस्टेंस आपके पास है, तो उसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ये 2 रेजिस्टेंस है, उसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालो, तो इक्वेशन ही डायरेक्टली R2 R3 अपॉन R2 + R3। कोई भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो प्रोडक्ट अपॉन समेशन,
ऐसा ही करना है। तो R2 R3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 3 इंटू 2 अपॉन समेशन कितना हो 3 प्लस 2, तो आंसर कितना है 3 इंटू 2 6 अपॉन 5। तो मतलब इसकी जो पूरी सर्किट है आप ऐसे रिप्लेस करो, ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे R1 है, R1 इज इक्वल टू 1 ओम, और ये पूरा किससे रिप्लेस करना है 6 अपॉन 5 ओम से रिप्लेस करो। चलो तो 6 अपॉन 5 ये पूरा, हाँ यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे आए सीरीज में, इसका R इक्विवेलेंस निकालो। सो इसके लिए R इक्विवेलेंस कैसा होगा, दोनों का सम होगा। सो 1 प्लस 6 अपॉन 5, सो 5 प्लस 6 11 अपॉन 5 ओम। देखो 11 अपॉन 5 है कहाँ पे, तो 11 अपॉन 5, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो सेकेंड के लिए होना चाहिए, तो ये सेकेंड का आंसर। ठीक है, मतलब अगर 11/3 चाहिए तो इन 3 रेजिस्टेंस को आप ऐसे काउंट करो, 11/5 चाहिए इन 3 को ऐसे कंसीडर करो, 6 चाहिए तो ऐसे कनेक्ट करो, और 6 अपॉन 11 चाहिए तो ऐसे कनेक्ट करो। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप इस तरह से निकाल सकते हो। पूरा एग्जाम्पल नोट कर लो। Okay, next problem, C. This type of 2 problems is given to us and we have to finding out the equivalent resistance between the 2 points A and B. So first problem पे solve करते हैं, ठीक है। So this type of circuit is given to us. This all resistance are 1 ohm and this whole resistance are 2 ohm. Okay. See, all are same 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 like this. So if you just consider this 2 point, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको R काउंट कर लो, तो फिर ए भी R होगा, ए भी R होगा, ए भी R होगा, ए भी R होगा। ओके, मतलब इस रेजिस्टेंस की सर्किट को आप ऐसे भी बना सकते हो, ए पूरा जो बॉक्स है उसको एक R से रिप्लेस करो, एक बॉक्स को एक R से रिप्लेस करो। तो कितने बॉक्स है 1 2 3 4, सो मतलब यहाँ पे 3 4 सभी को R से रिप्लेस कर दो। लेकिन R क्या है, एक बॉक्स, व्हाट इज दिस R, एक बॉक्स। ओके, हमें तो A और B के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे सभी R किस में है, सीरीज में है। देखो वो अभी R A जो भी है लेकिन ये तो सीरीज में है, तो फिर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें। सो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू RAB, कितने है 1 2 3 4 NR रेजिस्टेंस, ऑल आर सेम मीन्स NR। ओके, so n is equal to 4 here, so matlab your answer is what, R equivalence is equal to 4R. You can do something, so you find the R, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। R के लिए कोई एक बॉक्स को काउंट करो, सिर्फ एक बॉक्स को। ओके, तो इसमें से कोई एक बॉक्स ले लो। चलो इसका A1 ओहम है, A1 ओहम है, A2 ओहम है और A2 ओहम है, और ए 2 पॉइंट के बीच का चाहिए। तो फिर ए दोनों सीरीज में, ए दोनों भी सीरीज में, उसके बाद वो दोनों पैरेलल में, तो इसको सीरीज में रखो, तो 1 और 1 सीरीज में कितना होता है 2, तो मतलब इसकी इक्विवेलेंट सीरीज कैसे, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होगी, ए दोनों 1 और 1 2, तो मतलब ए हो गया 2 ओम, 2 और 2 4, सो ए हो गया 4 ओम, ये दोनों पॉइंट्स 4 और 2 का पैरेलल रेजिस्टेंस। तो इसका जो इक्विवेलेंस है उसको आपने क्या बोला है R, है ना, इसका इक्विवेलेंस है उसको आपने R की गिवन है, तो R फाइंड कर लो इसमें। तो पैरेलल के लिए आपको इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है, R इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन अपॉन समेशन, सो 4 इंटू 2 अपॉन समेशन 4 प्लस 2 6। ओके, सो 2 3 जा, मतलब R कितना आया, R इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 ओहम। इसको यहाँ पे रख दो, आपका R इक्विवेलेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दो, तो कैलकुलेशन इज इन होमवर्क। आप इसको इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस तरह का कुछ गिवन है। नाउ इफ यू सी द फिगर यू जस्ट थिंक दैट इज आर ऑल आर इन पैरेलल, बट एक्चुअली नॉट। सी, ये यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो मतलब एक अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस को काउंट करते हो तो 1 2, सेकेंड काउंट करो तो 1 2। देखो एक ही टर्मिनल कॉन्टेक्ट में, एक टर्मिनल कॉन्टेक्ट में नहीं है। इसका थर्ड का देखो तो 1 2, एक टर्मिनल कॉन्टेक्ट में, एक नहीं है।
तो फिर ए ऑल द रेजिस्टेंस आर गिवन टू अस आर इन सीरीज। एक्चुअली सीरीज में ये देखो ऐसे है, उसको पैरेलल की जगह से ट्रीट किया हुआ है, लेकिन है कैसा देखो ऐसा सीरीज है। अगर यहाँ पे भी कनेक्ट रहते सभी जगह पे तो फिर वो पैरेलल में होते। अगर ये सब यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्ट है तो पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अभी कौन से कैसे है सीरीज में, मतलब एक्चुअल सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये यहाँ पे है, कितने रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 एक्चुअल कुछ कंडीशन ऐसी दी हुई है, ठीक है। देखो 1 के साथ 2 कनेक्ट किया, मतलब यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2, और 2 को 1 को कनेक्ट किया तो 2 यहाँ पे आ गया तो 1 2 ऐसे, ठीक है। तो 5 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में, तो फिर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का आंसर क्या आता है, डायरेक्टली एनआर। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का आंसर क्या आता है, एनआर, है ना। सीरीज में एनआर होता है, पैरेलल में आर अपॉन होता है। तो आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू एक्चुअली एन होता है एनआर, और एन यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 में रख दो इसका आंसर। क्लियर है, चलो तो नोट कर लो एग्जाम्पल को। Okay guys, let's come to this illustration number 3.5. Problem statement is given like this. This type of circuit is given to us. Okay, and you just read the statement here. This holders resistance are connected with the 16 volt battery with the internal resistance 1 ohm. Okay, this type of situation is given to us. And the question is what? Find the R equivalence, find the current through each resistor, and find the voltage across AB, across BC and across CD. मतलब यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पहले आर इक्विवेलेंस से चलते हैं। सो इफ यू हैव टू फाइंडिंग आउट द आर इक्विवेलेंस, देन दिस बोथ आर इन पैरेलल, दिस बोथ आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के इक्वेशन क्या है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर इसकी बात करें इन दोनों रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो उसका आंसर कैसे होगा, इसका जो भी है आर इक्विवेलेंस, इसका ही सिर्फ इतना, हाँ, तो इसके इक्विवेलेंस आप ऐसा लिख सकते हो, उसको आप बोल दो R1, इसका जो इक्विवेलेंस है उसको बोल दो आप R1, ठीक है। तो दोनों ही पैरेलल में है, सेम है, पैरेलल में है और सेम है, तो फिर R बाई एन हो जाएगा। सो R बाई एन, सो 4 अपॉन एन, कितने रेजिस्टेंस है 2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। तो R1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 ओहम, ठीक है। इसको आप R2 बोलो, इसको आप R1 बोलो, और इसका जो भी आता है उसको आप R3 बोलो। चलो इसको आप ले लो R3। तो R3 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे। सो R3 इज इक्वल टू अगेन द सेम, यूजिंग द सेम फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। R1 मतलब 2 रेजिस्टेंस, मतलब 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, सो 12 प्लस 6 हो गया। 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 6 3 जा एंड 3 4 जा, तो फिर R3 का आंसर आपको मिल गया 4 ओहम। R3 क्या हुआ 4 ओहम। तो फिर इतना R3 है, इतना R2 है, इतना R1 है, सभी को आप नई सर्किट में ड्रॉ करोगे तो फिर आपको कुछ सर्किट ऐसे मिल जाएगी। देखो यहाँ पे बैटरी, और इसको आप मान लो कि स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो है उसको आप मान लो स्मॉल आर है, तो ऐसा कुछ हुआ। तो ये हुआ R1, ये हुआ R2, ये R3, ये स्मॉल आर, और ए से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। पॉइंट्स भी लिख देते हैं सब। तो यहाँ पे A B C D, ठीक है। चलो हाउ मच करंट इज फ्लो थ्रू द सर्किट, आई, यहाँ पे भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा मान के चलते। और कितने वोल्ट की बैटरी है, 16 वोल्ट की बैटरी है। तो आर इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दैट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट आर इक्विवेलेंस इन सीरीज, क्योंकि अभी तो सब सीरीज में आ गया, जो पैरेलल में थे उसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस ऑफ सर्किट, आर इक्विवेलेंस ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड करना है तो आप फिर ऐसे फाइंड कर सकते हो, इट्स जस्ट R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज। सो आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3, सबका समेशन करो। R1 2 AR1 है, टोटल उसका जो भी मिला उसको हमने R1 बोला है, इसके रेजिस्टेंस को हमने R3 बोला है, और जो R2 है वो 1 ओम है, ठीक है। तो R1 2 ओम प्लस R2 1 ओम प्लस R3 4 ओम। सो 2 + 1 3 + 4 7। सो मतलब आपका फर्स्ट आंसर हो गया R equivalence is equal to 7 ohm. That is our first answer. Now comes to the second answer. What is the current through this one? What is the current through each resistance? ओके, तो अगर आपको करंट चाहिए तो फिर करंट कैसे फाइंड करना है? तो करंट आप टोटल पहले फाइंड कर लो, टोटल करंट कितना फ्लो होता है, उसके बाद आप डिवाइड कर देना, ठीक है। तो I is equal to नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट EMF कितना है? 16। नेट EMF कितना है? 16। तो 16 अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है? ये R है, उसके बाद ए भी है, ये R है, उसके बाद ए भी हुआ ना, तो 7A है और 1A आ गया। तो फिर R इक्विवेलेंस मतलब यहाँ पे आप मैंने इसका ही R इक्विवेलेंस लिखा है, लेकिन अगर ये भी काउंट करते हो तो फिर R इक्विवेलेंस में ये भी ऐड करना है, लेकिन वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी का कैसा है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसमें ए ऐड करते हो तो फिर 8 हो जाएगा इसका ही आंसर, ठीक है। चलो ये भी यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद I फाइंड करेंगे। तो फाइनली R इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा? आप इसको R इक्विवेलेंस डैश बोल दो, R इक्विवेलेंस डैश। तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंस डैश प्लस R ऐड करो, तो 7 तो ये है ही, उसमें R आ गया, तो आंसर हो जाएगा R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 8 ओम। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ नहीं काउंट करना है, मतलब नहीं दिया हुआ है तो इतना ही लेना है, दिया हुआ है तो R भी काउंट कर लेना ऐसे। अभी करंट फाइंड करते हैं, सेकेंड केस करंट फाइंड करते हैं। चलो, तो करंट क्या हो जाएगा इसमें? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF कितना है? 16। टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला? 8 मिला ना, तो अपॉन 8, मतलब कि I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I मतलब यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब ये फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट VAB, VBC एंड VCD। तो see, current through R1, R2 and R3 same. Why? All are connected in series. So current through each resistance R1, R2, इसमें नहीं, इसमें बोल रहा हूँ, हाँ। current through R1, R2 and R3 same. कितना? 2 एम्पियर। So current through R1, R2 and R3 is same. ये क्वेश्चंस तो अच्छा है, हर एक रेजिस्टेंस जो भी है उसमें से करंट फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले ये फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसमें इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो, तो पहले VAB, VBC एंड VCD फाइंड करते हैं। तो पहले C सॉल्व करते हैं। तो VAB मतलब ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स मतलब ये 2 पॉइंट्स। यहाँ पे V चाहिए तो R1 इंटू जो भी करंट है वो, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो R2 इंटू जो भी करंट है वो, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो R3 इंटू जो भी पोटेंशियल है, ठीक है। तो फिर आंसर क्या होगा? एज पर दिस वन, सो वोल्टेज अक्रॉस AB, मतलब ये 2 पॉइंट्स, यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स ये है, तो आंसर क्या होगा? VAB इज इक्वल टू करंट। तो करंट तो सभी केस में सेम ही है, करंट सीरीज में तो सेम होगा, तो वो करंट इंटू R1। सो करंट इंटू R1, करंट कितना है? 2। R1 कितना है? R1 यहाँ पे 2, सो ये भी 2 हुआ, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? सो VAB इज इक्वल टू 4 वोल्ट। सेकेंड पे चलते हैं, अक्रॉस BC। सो VBC इज इक्वल टू दिस वन, सो R2 इंटू करंट, सो इज इक्वल टू IR2। पुट द वैल्यू, I इज इक्वल टू 2 एंड R2 फाइंड करो। R2 यहाँ पे R2 कितना है? 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, तो आंसर हो जाएगा VBC इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। चलो, नाउ द थर्ड वन CD। सो अक्रॉस CD, सो VCD इज इक्वल टू IR3। IR3 क्या हो जाएगा? देखो, I तो जो है वही, लेकिन R3 कौन सा है? 4 ओम, तो यहाँ पे रख दो 2 इंटू 4, कितना हुआ? 8 वोल्ट। सो आंसर हो गया VCD इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो कितना हुआ? 8 + 1 9, 9 + 4 13 हुआ। तो बाकी का कुछ यहाँ पे भी जाएगा,
16 में से यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वैसे आर में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। आर कितना है 1 है, तो 2 वोल्ट वहाँ भी जाएगा। ओके, तो अगर आप टोटल काउंट करो तो कितना आता है देखो, 2 × 2 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे सॉरी 2 वोल्ट, हाँ माई मिस्टेक, 2 × 1 हुआ ना, तो यहाँ पे 2 वोल्ट और 8, तो काउंट करो 4 + 2 6, 6 + 18 14, और 14 में से 16 में से 14 निकालो, कितना हुआ 2, तो अभी 2 वोल्ट यहाँ पे जाएगा। जैसे हमने सीखा है कि इंटरनल में कहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ पे 2 वोल्ट यहाँ पे भी जाएगा। तो ऐसे आप सभी को निकाल, A × R भी फाइंड कर सकते हैं, पूछा नहीं है लेकिन फाइंड करते हैं। चलो A × R, तो यहाँ पे A × R चाहिए, तो उसमें करंट तो सेम ही है, इंटू R करो, करंट कितना 2, R कितना 1, तो VR कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। इसका सबका समेशन 16 वोल्ट आना चाहिए, तो आप ये कर लेना, ठीक है। चलो अभी सभी रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करते हैं। ये R1 R2 में तो सेम है, लेकिन R1 में भी 2 रेजिस्टेंस है ना, तो सिर्फ ए बी ड्रॉ करो, उसके बाद सिर्फ बी सी ड्रॉ करो, उसके बाद सिर्फ सी डी ड्रॉ करो, सभी रेजिस्टेंस। तो आई में से ऐसा मान लो कि यहाँ पे कितना जा रहा है I1, यहाँ पे कितना जा रहा है I2, ओके। फिर यहाँ से तो आई जाएगा I, यहाँ फिर से यहाँ पे मान लो कि I1 डैश जा रहा है, यहाँ पे I2 डैश जा रहा है। तो आप अगर वो करंट चाहिए तो फिर इतना ही लूप ड्रॉ करो, सिर्फ इतना ही, एक वो ए और बी के बीच का, ठीक है। तो बी प्रॉब्लम को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर ये है एंड ये बी है, ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे कितना करंट हुआ I1, यहाँ पे कितना करंट है I2, ये ओहम कितना 4 ओहम। तो अगर इस एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट चाहिए तो VAB तो आपके पास है ही, देखो VAB तो है ही आपके पास, तो उसको आप I1 कैसे फाइंड कर सकते हो, इसमें से I1 = VAB अपन उस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 4, तो अपॉन 4, तो VAB कितना है 4, सो 4/4 कितना हो गया 1 एम्पियर। सिमिलरली I2 फाइंड करना है तो दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेंगे VAB जितने, अपॉन उसका रेजिस्टेंस कितना है 4, तो अपन उस 4 रख दो, VAB 4, तो ये भी कितना हो गया 1 एम्पियर। तो ये दो ब्रांच में से करंट मिल गया। नाउ करंट थ्रू 1 ओहम, वो तो सेम ही रहेगा I, क्योंकि यहाँ पे फिर से दोनों कनेक्ट हो जाए, 1 और फिर से 2 हो जाएगा। सो करंट थ्रू 1 ओहम, करंट थ्रू 4 ओहम इज 1 एम्पियर, करंट थ्रू 1 ओहम इज 2 एम्पियर, ओके। तो ये दोनों आंसर मिल गए। उसके बाद सेकेंड आंसर, करंट थ्रू 1 ओहम रेजिस्टर इज 2 एम्पियर। वो काउंट नहीं करना, वो तो दिख रहा है यहाँ पे, वो आई ही जा रहा है, तो आई तो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, कितना है 2 एम्पियर। नाउ यू जस्ट ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर। अभी आप नेक्स्ट फिगर बनाओ, चलो नेक्स्ट फिगर में कौन सी बनानी है आपको, नेक्स्ट फिगर कौन सी बनानी है आपको, सिर्फ इतनी लूप सी और डी के बीच की, तो सी और डी के बीच की लूप बनाओ, सिर्फ सी डी की लूप, ठीक है। यहाँ पे सी है, उसके 2 रेजिस्टर, और यहाँ पे डी है। ऊपर की ब्रांच में कितना जा रहा है I1 डैश, तो यहाँ पे I1 डैश, यहाँ पे कितना जा रहा है I2 डैश। ये रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, ठीक है। इसका मैं एक शॉर्टकट इक्वेशन भी है, लेकिन वो बाद में देखेंगे, अभी ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो I1 डैश चाहिए तो क्या करना होगा, इफ यू वांट I1 डैश, अगर आपको I1 डैश फाइंड करना है तो क्या करना होगा, सेम इसका पोटेंशियल अपॉन इसका रेजिस्टेंस V/R ही करना है। तो पोटेंशियल तो VCD है, तो यहाँ पे रख दो VCD। I1 डैश की ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 12, तो VCD कहाँ पे मिला था, VCD यहाँ पे कितना है 8, तो यहाँ पे रख दो 8/12, तो काउंट करो 8/12, तो 4/6, ओके, मतलब 4 निकाल दो दोनों में से, तो आंसर हो जाएगा I1 डैश इज इक्वल, यहाँ से 4 निकालो 2, यहाँ से 4 निकालो 3, सो 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली फाइंड द I2 डैश, दिस वन, सो I2 डैश मतलब इसमें से, तो VCD
अपॉन उसका रेजिस्टेंस 6 है तो उसका रेजिस्टेंस 6, VCD तो 8 है ही, तो आंसर होगा 8/6। इसमें से आप 2 निकाल दो तो फिर I2 डैश हो जाएगा 4/3 एम्पियर। अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो भी सेम ही आएगा 2 एम्पियर, क्योंकि 2 एम्पियर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, फिर से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से फिर से कितना करंट जाएगा, I जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप इसका सम करो तो आंसर कितना होना चाहिए, 2 एम्पियर होना चाहिए, तो आप ये कर लेना, हो जाएगा। तो सभी आंसर मिल गया, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर भी हो गया, वोल्टेज भी हो गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हो गया। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, 7, और अगर R को मिला दोगे तो कितना आता है, 8। ठीक है, तो प्रॉब्लम में देख लेना कौन सा चाहिए, ये चाहिए या फिर ये चाहिए। ओके, नोट दिस एग्जाम्पल।